Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. In the previous video, we discussed about foreign companies and the Bhopal gas tragedy, and also we discussed the Bhopal gas tragedy. And today we are going to start a new topic, that is environmental pollution. Okay. In this, the second topic is how was environment treated earlier, and what has been the change in perception. And next, change in perception. These three topics we will discuss today. Okay, so let's open your book, page number 285. Environmental pollution. Pollution, in simple words, environment means our surrounding. In simple words, we can say that environment means our surrounding. हमारा आसपास का माहौल कैसा है, सारा एरियाज कैसा है. If our surroundings are polluted, then we cannot live a peaceful and happy life. If you can imagine that if our surroundings are polluted and disturbed, every time there is noise, pollution, and also so many types of sound created, so it is not good for and also we can't live a peaceful and also a happy life. As such, people have become very particular about their pollution free surroundings, which is an important as food and water for us to survive. And also you have seen that to clean our environment, or to keep our environment pollution free is also very essential. Like in our life we need food, water, shelter to survive. In the same way, we must have to keep our surrounding and our areas pollution free. How was environment treated earlier, and what has been the change in? हम पहले इन्वायरमेंट को किस तरह से ट्रीट करते थे और इस समय की हमारी धारणा कैसी है. There is no denying the fact that the Bhopal gas tragedy has brought the issue of environment to the forefront. हम इस पर कोई दो राय नहीं है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद से हम इन्वायरमेंट के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं. ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे हम इसको सही से रखें, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो, फ्री रहे, एकदम फ्रीली लोग ब्रीदिंग कर सकें. ठीक. Before that is before 1984, neither the people nor the government were very particular about that. Before the year 1984, we common people also were not very aware, and also the government also were not particular about the environment. There was hardly any law to protect the environment in India. At that time there was created only you can say hardly a few laws to control or to maintain the laws. As such, environment of these laws did not happen. There was hardly any law to protect the environment in India. As such, enforcement of these laws did not happen. The environment was considered as a free entity to be exploited by one and all. Man, it is यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे कि आपने देखा कि गवर्नमेंट वाज कंसिडर्ड एज अ फ्री. गवर्नमेंट ने क्या कंसिडर किया है? एज अ फ्री एंटिटी टू द एक्सप्लॉइटेड बाय वन. दैट एनवायरनमेंट वाज कंसिडर्ड. एनवायरनमेंट को क्या कंसिडर किया गया है? As a free entity means a point, or you can say एक इकाई, to be exploited by one and all. Any industry could pollute the air and water without any hesitation whatsoever.
अगर इसके लिए रोकथाम नहीं होगी तो कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्रीज हमारे पॉल्यूशन को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, पॉल्यूट कर सकती है, इसमें उनको हेजिटेशन नहीं होगी। वेदर वाज it was air, water or soil, all were being exploited by all। चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे नॉइज पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर से वाटर को पॉल्यूट करने की बात हो, एंड ऑल सनराइज द एंड देयर वाज लिटिल केयर फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल। ये सारे प्रकार के विविध विविध प्रकार, एंड देयर वाज लिटिल केयर, और हम इसके लिए थोड़ा सा केयर कर सकते हैं किसके विरुद्ध, किसके प्रति, हेल्थ ऑफ द पीपल। अ चेंज इन परसेप्शन, हमारी धारणा में क्या चेंज हुई है। As said earlier, it was the Bhopal gas tragedy in 1984 that brought the problem of pollution to the forefront। हमने देखा ना कि 1984 के बाद से हमारे सामने एक ऐसी जो कहते हैं कि प्रॉब्लम आ गई है। वो कैसी प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है जो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। इट वॉज नॉट ओनली द वर्कर्स ऑफ यूनियन कार्बाइड प्लांट हु सफर्ड, ये केवल उन्हीं की बात नहीं है, वर्कर्स की बात नहीं है जो कि यूनियन कार्बाइड में काम करते हैं, हु सफर्ड बिकॉज ऑफ गैस लीक, बट इट ऑल्सो अफेक्टेड, उन्हीं के लिए नहीं है जो कि उस गैस लीक में इफेक्ट हुए थे, उनको उनके ऊपर क्षति हुई थी, बल्कि उनके लिए भी है। ऑल्सो अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु वेर रिसाइडिंग अराउंड द फैक्ट्री, और उन हजारों संख्या के लोगों के बारे में भी है जो कि उस फैक्ट्री के आसपास रहा करते थे। इट लेफ्ट मोर देन 8,000 पीपल डेड एंड नियरली 50,000 पीपल एज सिक, सम ऑफ देम टू सिक टू वर्क। इतनी 8,000 की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई, 50,000 की संख्या में लोग बीमार हो गए, और इतने बीमार हो गए कि वो दोबारा काम करने के योग्य नहीं रहे। The pressure from the environment activists and the general public in the following years of Bhopal gas tragedy forced the Indian government to devise new laws about environment। And also you have seen that जो हमारे environment की तरफ से एक्टिविस्ट की तरफ से बहुत प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट के लिए कि हमें इसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाने हैं, जो न्यू लॉज लाने हैं इन्वायरमेंट के लिए को पॉल्यूट करने से रोकने के लिए। Hence the new laws were passed which held the polluter accountable for the damage done to environment। और इसके लिए हमारे यहाँ लॉ भी पारित हो गया जिसके लिए क्या है कि एयर को पॉल्यूट नहीं करना है। It was argued that environment is something that people will share for generations and it should not be allowed to be destroyed by anyone। And it was argued that यह भी माना जाता है कि environment जो है ये क्या है, is something that people will share, वो चीज़ है जो कि people share करेंगे कब तक, generations, and it should not be allowed to be destroyed by anyone, और किसी के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय नहीं करने देना है। इवन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही क्यों ना हो। द कोर्ट्स इन देयर डिसीजंस वन आफ्टर द अदर continuously held that clean environment is a public facility, and also it is said that in कोर्ट में भी यह डिसीजन लिया जा चुका है एक के बाद कि एक क्या, क्लीन इन्वायरमेंट इज अ पब्लिक फैसिलिटी। क्लीन इन्वायरमेंट क्या है, यह एक पब्लिक फैसिलिटी है। एंड इट शुड बी मेड पॉल्यूशन फ्री और एट ऑल कॉस्ट, हमें किसी भी कीमत पर इसे पॉल्यूशन फ्री करना है। Much emphasis was laid on the point that a healthy environment is an essential part of the fundamental rights of to life। और यह भी कहा गया है कि ज़्यादा जोर डाला गया है किस पर, on the point that, किस पॉइंट पर, that a healthy environment is an essential, healthy environment बहुत ही ज़रूरी है,
और यह पार्ट है, किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ और राइट टू लाइफ। इन अ पर्टिकुलर केस सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, द सुप्रीम कोर्ट इन 1991 held that right to life is a fundamental right अंडर आर्टिकल 21 के द्वारा कहा गया है कि राइट जो फंडामेंटल आर्टिकल 21 के तहत क्या है कि राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट Constitution and it includes the right to the enjoyment of pollution-free water and air for full enjoyment of a life। सबके लिए एयर जरूरी है, एयर को एंजॉय करें लोग, वाटर सबको ज़रूरी है, सारी चीज़ें सबके लिए ज़रूरी हैं, जो और वाटर भी ज़रूरी है। It decreed the government was responsible for laying down such laws और इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि ये सारे कुछ लॉज इसके लिए वो पारित करें। laying down such laws and procedures as can check pollution और उसके लिए pollution चेक करने के लिए प्रोसीजर्स भी तैयार करने हैं। एंड ऑल्सो clear rivers and impose heavy fines on those who are found responsible for polluting the environment। and also एक और लॉ पास हुआ है जिससे कि जो क्लियर रिवर्स हैं उसको अगर कोई पॉल्यूट करते हुए पाया जाता है तो उन पर भी हैवी टैक्स है या हैवी फाइन लेना है। But there are some people who hold the view that while the court's decision solved one problem, it created another। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि कोर्ट अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो दूसरी प्रॉब्लम भी हमारे सामने आती है। कैसी? साइटिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, हम दिल्ली गवर्नमेंट की एग्जाम्पल लेते हुए देखते हैं। दे फेल्ट दैट ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स from residential areas in Delhi, many workers lost their jobs। आपने देखा कि रेसिडेंशियल एरिया में मान लीजिए फैक्ट्री है, तो अगर उस फैक्ट्री को हम दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं तो वहाँ के लोगों का जॉब खत्म हो जाता है। Moreover, the new areas to which the factories were shifted began to be suffer from pollution। और अगर न्यू एरिया में इंडस्ट्रीज को फैक्ट्री को सेटल करते हैं तो क्या होता है कि उस नए एरिया को वो पॉल्यूट करता है, पॉल्यूशन से उस एरिया के लोग सफ़र करते हैं। Then what was the use of shifting factories from one area to another and what is the need of shifting that the factories from one place to another place? The answer can be that in new areas the pollution will affect few people। The answer क्या है इसका? न्यू एरिया में अगर फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो न्यू एरिया में कम लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। एंड देन इन कंजस्टेड लोकेलिटीज इन दिल्ली, जो कि कंजस्टेड लोकेलिटी में दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर असर करेगा, लेकिन जब वही फैक्ट्री शहर में दूर में रहेगी तो कम लोगों को के ऊपर इफेक्ट करेगी। बट मेयर शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ नॉट अ फुल प्रूफ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि यही एक शिफ्ट करने तक का ही सॉल्यूशन नहीं है पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। It would be better that we adopt some cleaner technologies। ये बहुत सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है कि हमें कुछ अडॉप्ट करना चाहिए। क्या अडॉप्ट करना चाहिए? क्लीनर टेक्नोलॉजीज and process in factories। The government must fine those who pollute the environment। और गवर्नमेंट को ज़रूर से ज़रूर पनिश करना चाहिए जो कि पॉल्यूशन को जो एयर को पॉल्यूट करते हुए, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हुए पाए जाते हैं। Who pollute the environment and it should encourage and support those factories which adopt cleaner techniques। और उनको सपोर्ट करना चाहिए जो फैक्ट्रीज क्लीनर टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रही है। सॉल्विंग
और एटलीस्ट मिनिमाइजिंग द पॉल्यूशन, वो या तो कम करने की कोशिश कर रही है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। लेट द वर्कर्स, द फैक्ट्री ओनर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज enjoy a safe and pollution free environment। इसलिए हमें क्या करना है, जो वर्कर्स हैं, द फैक्ट्री ओनर्स हैं और जो पब्लिक है, उनको इंजॉय करने देना है। कैसा लाइफ है, सेफ एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, एंड नन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस ऑफ हिज लाइवलीहुड। और किसी को इससे, उनकी लाइफ जीने से हम मनाही नहीं कर सकते हैं। ओके, सो टुडे वी हैव completed chapter 34 civics, and in next bell we will start geography portion. Okay, so thank you.